Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Hub, where I'm your tutor Jasneet will be teaching a variety of subjects like mathematics, social studies, English and such more from classes 5th to 10th. So today we'll begin with the class 5th English poem first of the book Marigold, and the poem name is The Ice Cream Man. So let's begin with the first paragraph of the poem. So what does the first line says? When summer's in the city. So this means that whenever summer season comes in the city and the breaks a blaze of heat. Now what does this mean? That whenever summer season comes in the city, a breaks a blaze of heat. That the bricks of any building, house, office, etc. reflects so much heat in the summer season. Okay, the ice cream man with his little cart. So what does this mean? That the ice cream man carrying his little cart, मतलब जो ice cream man है वो अपनी एक छोटा ठेला लेके जा रहा है. Cart means ठेला and little means छोटा. So what does the fourth line mean? Goes trundling down the street. That this means that the ice cream man going street to street in order to sell his ice creams. Okay. Now what does trundling mean? Trundling here mean that moving a very hard or heavy object. कोई भी किसी भी भारी या फिर एकदम हार्ड ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी किसी भी भारी चीज़ को लुढ़कना, ठीक है, किसी भी भारी चीज़ को चलाना. दिस मीन्स ट्रंडलिंग. किसी भी भारी चीज़ को धीरे से या बहुत शोर मचा के चलाना. दिस मीन्स ट्रंडलिंग. ओके. So here we end this paragraph, and next we'll begin with the next paragraph. Thank you. So let's start with the second paragraph. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with knots of cooling brown and white. Beneath his round umbrella. Now beneath here what means? Beneath means under or below. Okay, so below his, under or below his round umbrella, oh what a joyful sight. Now poet is saying that उसकी round of the poem The Ice Cream Man. So let's start with the fourth and the last paragraph. Okay. So now let's begin with the fourth and the last paragraph of the poem. So let's read. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. Now what does these two lines mean? So his cart might be a flower bed. अब इसमें पोर्ट ने क्या बोला है कि जो उसकी कार्ट है, जो उसका जो कार्ट है, उसका जो ठेला है, वो एक फ्लावर बेड की तरह है. फ्लावर बेड मीन्स यहाँ पे फ्लावर बेड लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लांट बेड भी हो सकता था. फ्लावर या प्लांट बेड मीन्स इफ यू हैव हर्ड दैट अगर जो प्लांट्स की जो क्यारी होती है, मीन्स की जो प्लांट फ्लावर्स होते हैं वो ऐसे रोज में लगे होते हैं, रोज में लगे होते हैं. ओके, ऐसे. तो जो कार्ट है, उसका जो ठेला है, उसको एक कंपैरिजन दिया गया है. किससे? एक फ्लावर बेड की तरह दिया गया है. ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस. अब वो क्या कहता है कि जो उनकी कार्ट है, जो उसका ठेला है, वो फ्लावर बेड की तरह है. जो किससे भरे हुए हैं? जो रोजेस और स्वीट पीस से भरे हुए हैं. ओके. जो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. The way the children cluster round as thick as honeybees. So what does these two lines mean? The poet says that the way the children cluster round. इसका मतलब ये है कि जैसे जब आइसक्रीम मैन की जब कार्ट आती है, जब आइसक्रीम मैन का ठेला आता है, तब वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, वहाँ के जो चिल्ड्रन होते हैं, वो वहाँ पे ऐसे क्लस्टर करते हैं. क्लस्टर अराउंड मीन्स वो वहाँ पे झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं. ओके, वो वहाँ पे झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं.
क्लस्टर मीन्स ग्रुप। जब आइसक्रीम मैन का कार्ट आता है तब वहाँ जो चिल्ड्रन होते हैं, वहाँ जो बच्चे होते हैं, वो एक ग्रुप में, राउंड में, ग्रुप में खड़े हो जाते हैं, एज थिक एज हनी बीज। अब इसमें पोएट ने किसके साथ कंपैरिजन किया है कि जो बच्चे हैं वो जब क्लस्टर में खड़े हो जाते हैं, ग्रुप में खड़े हो जाते हैं आइसक्रीम मैन की कार्ट के पास, पोएट ने कंपैरिजन किया है हनी बीज से। अब वो क्या कहते हैं, एज थिक एज हनी बीज। जब वो ग्रुप में खड़े होते हैं बच्चे, तब वो कैसे खड़े होते हैं, जैसे कि जो हनी बीज होती हैं। ओके, हनी बीज मीन्स, जब वो पोएट कहना चाहते हैं कि जो हनी बीज होती हैं, जैसे वो ग्रुप में, क्लस्टर में, मतलब जब लार्ज नंबर ऑफ हनी बीज ग्रुप में मिल जाती हैं, जब ग्रुप में आ जाती हैं, तो वो बहुत ही थिक एक राउंड लगता है, वो बहुत ही बड़ा लगता है, वो बहुत बिग लगता है। तो इसमें दिया हुआ है, अगर आप थिक लिखे, आप इसकी जगह लार्ज नंबर भी लिख सकते हो, एज लार्ज नंबर एज हनी बीज। वो ऐसे झुंड में खड़े होते हैं बच्चे, चिल्ड्रन ऐसे ग्रुप में खड़े होते हैं जैसे कि जब बहुत सारी हनी बीज, जो बहुत सारी मधुमक्खी यानी हनी बीज होती हैं, जब वो बहुत लार्ज नंबर में ग्रुप में मिल जाती हैं, वैसे ही बच्चे यहाँ पे राउंड में, क्लस्टर ग्रुप में खड़े हो जाते हैं आइसक्रीम मैन के कार्ट के पास, ठेले के पास। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड विद द पोम द आइसक्रीम मैन. So I hope you like this video. So please do like, share and subscribe. Thank you. And make sure that you are watching this video very carefully and understanding the concepts. Okay, thank you. Do like, share and subscribe.